Assalamu alaikum dear students. Hopefully with the grace of Allah Almighty you all will be hale and healthy. Today we are going to start our new lesson number 10, A Mild Attack of Locusts. This lesson has been written by Doris Lessing. Let's know something about the author. Doris Lessing was a British novelist who was born to British parents in Iran. After a few years her family moved to Britain. She was born in 1919 and died in 2013. She was a very well-known author and has written so many novels, dramas and short stories. In this lesson, A Mild Attack of Locusts, we are going to know about how the attack of locusts destroy all the crops and leave the landscapes barren. You know that the attack of locusts is a natural calamity that makes the human beings helpless in saving the crops, an asset and a source of living for an agriculturalist. The farmers did their best to save their crops from the attack of locusts. They burned big fires to dip up the thick clouds of smoke and made loud noise by beating the tin cans to keep the insects away from their fields. But all their attempts failed, and the insects ate every blade of their crops, leaving the fields to give a look of a devastated landscape. However, they did not take the loss to their heart and remained calm. They endured what they could not cure. So we should also learn lesson from this chapter that it's natural calamity. You know that few months before we have also faced the same issue. Our fields were also attacked by the locusts and we faced a lot of devastation in our fields. So now open page number 62 of your textbook. We are going to start this lesson. Look, there they are. देखो देखो वो हैं वहाँ. Out ran Margaret to join them. Looking at the hills, out came the servants from the kitchen. They all stood and gazed. Over the rocky levels of the mountain was a streak of rust-colored air locusts. There they came. At once Richard shouted the cook boy. Old Stephen yelled at the houseboy. The cook boy ran to beat the old ploughshare hanging from a tree branch that was used to summon laborers at moments of crisis. So here you can see in the very start the writer has introduced the characters. Margaret, Richard, servants were there, old Stephen. All the characters have been introduced to you. So look, there they are. देखो देखो वो हैं वहाँ. Out ran Margaret to join them. Looking at the hills. Margaret पहाड़ों की तरफ देखते हुए उनमें शामिल होने के लिए बाहर भागी. Out came the servants from the kitchen. और मुलाजिम भी बावर्ची खाने से बाहर निकल आए. They all stood and gazed. वो सब के सब खड़े हो गए और gaze means कि टिकटिकी बांध कर देखना. Over the rocky levels of the mountain was a streak of rust-colored air. क्या था कि पहाड़ की चट्टानी उफके सिमट पर उस तरफ क्या था कि फ़िज़ा में नारंगी सुर्खी माय रंग की एक पट्टी नज़र आ रही थी. और वो पट्टी असल में क्या थी? वो लोकस्टस ही थी. वो जो नारंगी सुर्ख कलर की जो सुर्खी मायल जो पट्टी नज़र आ रही थी, आप नारंगी या फिर सुर्खी माइल कह सकते हैं कि सुर्खी माइल कलर की जो पट्टी सी नज़र आ रही थी वो असल में क्या थी? वो लोकस्टस थी. देयर दे केम के वो वहाँ आ गई थी. एट वंस रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय. और उसी वक्त क्या था
रिचर्ड ने बॉर्जिक को आवाज़ दी। ओल्ड स्टेफन येल्ड एट द हाउस बॉय, और बूढ़े स्टेफन ने घर के मुलाजिम को पुकारा। द कुक बॉय रेन टू बीट द ओल्ड प्लॉस्टियर, और बॉर्जी खाने की शाख से मौलिक पुराने हल के फाले को बचाने के लिए वो दौड़ा। That was used to summon laborers at moments of crisis, जो इस तरह की हंगामी सूरत हाल में मज़दूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था। अब क्या था कि वो प्लॉस्टियर लेने के लिए भागा। The houseboy ran off to the store to collect tin cans, any old bit of metal, और मुलाजिम जो थे टीन के डब्बे और धात के पुराने टुकड़े लेने के लिए स्टोर की तरफ भागे। Actually, that मुलाजिम was houseboy. The farm was ringing with the clamor of the gong, and they could see the laborers come pouring out of the compound, pointing at the hills and shouting excitedly. अब क्या था कि फार्म टन टन से गूंज रहा था और मज़दूरों को आते से मड कर आते देख सकते थे, जो पहाड़ों की जानिब इशारे कर रहे थे और जोश व खराश से चिल्ला रहे थे। और सून दे हैड ऑल कम अप टू द हाउस, और जल्द ही वो सब इस मकान पर पहुंच चुके थे। रिचर्ड एंड ओल्ड स्टेफन वर गिविंग देम ऑर्डर्स, हरी हरी हरी, और रिचर्ड और जो बूढ़ा स्टेफन था वो उनको हुक्म दे रहे थे, अहकामात दे रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। एंड ऑफ देयर रेन अगेन द टू वाइट मैन विद देम, एंड इन अ फ्यू मिनट्स मार्गरेट कुड सी द स्मोक ऑफ फायर्स राइजिंग फ्रॉम ऑल राउंड द फार्मलैंड्स। अब क्या था कि वो दोबारा भाग खड़े हुए, और बाकी दोनों भी, जो दोनों गोरे आदमी थे, वो भी उनके साथ भागे। चंद ही लम्हों में क्या था कि मार्गरेट खेतों की हर तरफ आग का धुआं उठते हुए देख सकती थी, और वहाँ पर पाइल्स ऑफ वुड एंड ग्रास हैड बीन प्रिपेयर्ड देयर, लकड़ी और घास के ढेर लगाए जा चुके थे। देयर वर 7 पैचेस ऑफ बेयर सॉइल, और वहाँ पर क्या था कि जो बेयर सॉइल थी, यानी कि जो तबाह हो गई थी ज़मीन, उसके 7 पैचेस नज़र आ रहे थे, 7 के तात नज़र आ रहे थे, कि उनकी रंगत जो है वो पीली पड़ चुकी थी, येलो कलर एंड पिंक, और पिंक हो चुकी थी। वेयर द न्यू मैलीज वर जस्ट शोइंग, मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन, एंड अराउंड ईच ड्रिफ्टेड अप थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक। जहाँ भी अभी जो है मकई की कोंपलें दिखाई देने लगी थी, जिन्होंने ज़मीन पर एक साफ शफाफ परत बना दी थी। और क्या था, एंड अराउंड ईच ड्रिफ्टेड अप, और वहाँ क्या था कि हर एक खेत के गिर्द धुआं के घने बादल तैर रहे थे, कि जो धुआं जो है उन्होंने छोड़ा हुआ था। दे वर थ्रोइंग वेट लीव्स ऑन टू द फायर्स नाउ टू मेक इट ब्लैक, टू मेक इट एक्रिड एंड ब्लैक, कि अब जो है वहाँ जो मज़दूर थे वो आग से कड़वा सिया धुआं उठाने के लिए इस पर गीले पत्ते डाल रहे थे। मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स, और मार्गरेट जो है पहाड़ों को देख रही थी। नाउ देयर वॉज अ लो क्लाउड एडवांसिंग, रस्ट कलर स्टिल स्वेलिंग फॉरवर्ड एंड आउट एज शी लुक्ड। अब क्या था, वहाँ एक तवील और कम ऊंचा बादल, जिसका रंग अभी तक नारंगी था, आगे और बाहर को फैल रहा था। द टेलीफोन वाज रिंगिंग, और फ़ोन भी बज रहा था। नेबर्स क्विक देयर कम द लोकस्टस, कि पड़ोसियों जल्दी करो कि लोकस्टस का अटैक हो गया है, टिड्डी दल का हमला हो गया है। ओल्ड स्मिथ हैड हिज क्रॉप ईटन टू द ग्राउंड, कि जो बूढ़ा स्मिथ था उसकी फसल
ज़मीन की सतह तक जो है चट कर दी गई थी। फॉर ऑफ कोर्स एवरी फार्मर होप द लोकस्ट्स वुड ओवरलुक हिज फार्म एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट। और बिलाशुबा जो है हर किसान यही सोच रहा था कि जो टिड्डी दल है वो उसके खेत को नज़रअंदाज करके अगले खेत में चला जाए। और वन मस्ट प्ले फेयर everywhere. 50 miles over the countryside the smoke was rising from myriads of fires. फिर भी एक दूसरे को जो ख़बरदार करना था वो एक ईमानदारी की बात थी कि आदमी को ज़रूर जो है ईमानदारी से अपने मामलात चलाने चाहिए। यानी कि वो एक मतलब अपने खेत से जो है टिड्डी दल को भगाकर दूसरे खेत में भेज रहे थे, लेकिन फिर साथ साथ क्या है दूसरे हमसाये को भी ख़बरदार करते जा रहे थे ताकि उनके खेत में अगर आ रहे हैं तो वो फिर कोई बचाव का तरीका निकाल लें, अपने खेतों को बचा लें, ताकि क्योंकि आदमी को अपने मामलात ज़रूर ईमानदारी से निभाने चाहिए। वन मस्ट प्ले फेयर। अब क्या था कि हर जगह 50 मील तक ओवर द कंट्री साइड, उस तमाम जो देही इलाका था उस पूरे के पूरे इलाके में द स्मोक वाज राइजिंग, के धुआं जो है वो उठ रहा था, धुएं के लाव उठ रहे थे, अनगिनत लाव उठ रहे थे धुएं के। मार्गरेट आंसर द टेलीफोन कॉल्स, और मार्गरेट जो थी वो टेलीफोन कॉलों का जवाब दे रही थी। एंड बिटवीन द कॉल्स शी स्टूड वॉचिंग द लोकस्ट्स, और इसी कॉल के दौरान वो साथ साथ क्या है टिड्डी दल का जो हमला था उसको भी देखती जा रही थी, उस पर भी उसकी नज़र थी। देयर वाज डार्कनिंग, के जो फ़िज़ा थी वो भी तारीक होती जा रही थी। अ स्ट्रेंज डार्कनेस, और एक अजीब तरह की तारीकी थी जो कि छाए जा रही थी। और द सन वाज ब्लेजिंग, क्योंकि सूरज भी तो खूब चमक रहा था। इट वाज लाइक द डार्कनेस ऑफ अ वेल्डेड फायर, कि ये बिल्कुल ऐसे था जैसे कोई आग पर जो है नकाब डाल दिया जाए, ठीक है, रोशनी पर, यानी कि थोड़ा सा पर्दा डाल दिया जाए तेज़ रोशनी पर, आग के लाव पर। व्हेन द एयर गेट्स थिक विद स्मोक, और जब जो हवा है, जो फ़िज़ा है वो भी धुएं से भर जाए। द सनलाइट कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड, और जो सूरज की रोशनी है फिर वो नीचे जो आती है वो बिखरी बिखरी सी आती है। आ थिक हॉट ऑरेंज, और वो ऐसे लग रहा होता है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा शौक और नारंगी कलर का इमेज नज़र आ रहा होता है। ऑप्रेसिव इट वाज, कि ये बहुत ज़्यादा जो है घुटन ज़्यादा सा माहौल था। विद द हैवीनेस ऑफ अ स्टॉर्म, कि इस तूफ़ान के बोझ के साथ थोड़ा सा जो माहौल था वो क्या था, ऑप्रेसिव हो गया था। द लोकस्ट्स वर कमिंग फास्ट, और जो लोकस्ट्स थी वो बहुत तेज़ी के साथ आ रही थी। नाउ हाफ द स्काई वाज डार्केंड, और अब जो है आधा आसमान तारीक हो चुका था। बिहाइंड द रेडिश वेल्स, और इस सुर्खी माइल पर्दे के पीछे जो था, विच वर द एडवांस गार्ड्स ऑफ द स्वार्म, द मेन स्वार्म शोड इन डेंस ब्लैक क्लाउड रीचिंग ऑलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, के इसी सुर्खी माइल नकाब जो कि इस लश्कर का हरावल दस्ता था, उनके पीछे एक बड़ा लश्कर घने सिया बादल की सूरत में जो कि सूरज की बुलंदी को छू रहा था वो भी नज़र आ रहा था। मार्गरेट वॉज वॉन्डरिंग व्हाट शी कुड डू टू हेल्प, अब मार्गरेट जो है वो हैरान हो रही थी कि वो क्या कर सकती है मदद के लिए। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी। देन अब केम ओल्ड स्टेफन फ्रॉम द लैंड्स, फिर जो है वो बूढ़ा स्टेफन वो खेतों पे से आया। वी आर फिनिश्ड मार्गरेट, फिनिश्ड कि हम जो है मार्गरेट ख़त्म हो चुके हैं। दोज बैगर्स कैन ईट एवरी लीफ एंड ब्लेड ऑफ द फार्म इन हाफ एन आवर, कि वो उन्होंने हमारी ज़मीन का हर एक जो है हिस्सा वो खा लिया है सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे में ही भिखारी टिड्डियों ने। अब उसे भिखारी टिड्डियाँ क्यों कह रहा है, भूखी टिड्डियाँ थी, मतलब उन्होंने आके हमला कर दिया है, सब कुछ लूट लिया है, सब कुछ ख़त्म कर दिया है। एंड इट इज़ ओनली अर्ली आफ्टरनून, और ये तो अभी सहबार का आगाज़ है। इफ़ वी कैन मेक एनफ स्मोक, अगर हम कुछ धुआं पैदा कर सकें काफ़ी मकदार में, मेक एनफ नॉइज़, और बहुत ज़्यादा शोर मचा सकें कि
जब तक के सूरज डूब ना जाए, द सन गोज़ डाउन, दे विल सेटल समवेयर एल्स परहैप्स, तो फिर ये कहीं और जाकर सेटल हो जाएंगी, कहीं और अपना ठिकाना कर लेंगी और वहाँ बैठ जाएंगी अगर हमने ऐसा ना किया तो। एंड देन गेट द कैटल गोइंग, और फिर क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम इनको कहीं और भेजना चाहते हैं, यहाँ सेटल डाउन ना कराने देना चाहें, तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें जो है बहुत ज़्यादा नकारे बजाने होंगे, नकारे बजाते रहने होंगे। और ये बहुत ज़्यादा जो है वो कह रहा था कि मेहनत तलब काम है, गेट द कैटल गोइंग, यानी कि अगर नकारे बजाते रहो तो फिर ये क्या है, बहुत ज़्यादा थर्स्टी वर्क मीन्स कि बहुत ज़्यादा मेहनत तलब काम है। अगर हम ऐसा कर दें तो फिर ये क्या होगा, ये यहाँ पर सेटल नहीं होंगी, यहाँ पर नहीं ठहरेंगी, ये फिर कहीं और चली जाएंगी। ओके गर्ल्स, वी आर एंडिंग टिल दिस लाइन, वी विल स्टडी रिमेनिंग लेसन टुमारो इंशाल्लाह। टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।